وزیر اعظم شہباز شریف نے IMF پیکج کی بحالی پر وزارت خزانہ اور خارجہ کی ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ ایک پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ مفتاح اسماعیل بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں ہونے والی کوششوں سے IMF پروگرام بحال ہوا ہے۔ یہ زبردست ٹیم ورک تھا۔ IMF سے معاہدہ ملک میں معاشی مشکلات کم کرے گا۔ وزیر اعظم نے ڈیزل 40 روپے 54 پیسے اور پیٹرول 18 روپے 50 پیسے فی لیٹر کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ قوم سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کے نرخ کم ہوئے تو مزید کمی کریں گے۔ تباہ شدہ معیشت ورثے میں ملی۔ PTI حکومت نے IMF کے ساتھ سخت ترین شرائط پر کیے گئے معاہدے کی خود دھجیاں اڑا دیں۔ دل پر پتھر رکھ کر مشکل فیصلے کرنا پڑے۔ ہمیں ورثے میں ایک تباہ شدہ معیشت ملی۔ پچھلی حکومت نے IMF سے سخت ترین شرائط پر جو معاہدہ کیا تھا، جاتے جاتے سابق حکومت نے اس کی دھجیاں بکھیر دی اور ہمارے لیے بارودی سرنگیں بچھا دی۔ دل پر پتھر رکھ کر ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑے۔ خود انحصاری واحد راستہ ہے۔ مشکلات کو عبور کریں گے اور اچھے وقت ضرور آئیں گے اور جلد آئیں گے۔ ڈیزل کی مد میں 40 روپے 54 پیسے کی کمی کی جا رہی ہے۔ پیٹرول کی مد میں 18 روپے 50 پیسے کی کمی کی جا رہی ہے۔ آئندہ بھی عالمی منڈیوں میں اجناس کی، تیل کی قیمتوں میں کمی ہوتی رہے، جو کہ ہم اپنی قوم کے حوالے کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے اعلان پر عوام نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ لوگوں نے کمی کو ناکافی بھی قرار دیا اور کہا کہ حکومت کا اچھا اقدام ہے، تاہم جتنے زیادہ نرخ کر دیے گئے تھے اس میں مزید کمی لائے جائے۔ کچھ نے ضمنی الیکشن کے بعد دوبارہ اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ پیٹرول کا ریٹ اچھا ہو کم ہوا ہے، اس سے مہنگائی بھی کم ہوگی اور اس چیز میں اچھا ہوگا، بہت ہمیں فائدہ ہوگا پیٹرول سے۔ حکومت سے مطالبہ ہے کہ حکومت انشاءاللہ اور اچھا کرے گی ہمارے لیے۔ نواز شریف پہ ہم کو بھروسہ ہے۔ ہمیں امید نہیں تھی کہ پیٹرول سستا ہوگا، ہم نے تو سنا تھا کہ 300 تک پہنچ جائے گا، لیکن ابھی اللہ کا شکر ہے کہ پیٹرول سستا ہو گیا ہے۔ پاکستان کے عوام کے لیے تھوڑا امید جنور ریلیف مل جائے، بہت مہنگائی ہے، جو پاکستان کے حالات دیکھ کر مشکل ہے سب کچھ ہو جائے نا، تو سب کچھ سے میرا یہی درخواست ہے حکومت سے کہ تھوڑا پیٹرول میں کچھ ہو کر چیزیں سستا ہو جائے تو اس میں سارا چیزیں سستا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نون لیگ حکومت میں کچھ تبدیلی آ جائیں گی۔ 180 روپے لیٹر ہونا چاہیے۔ حکومت اگر 30 روپے کم کر رہی ہے، کوئی احسان نہیں کر رہی۔ سر یہ آج 18 روپے کم کر رہے ہیں، ان کی مہربانی 15 دن کے بعد جو نا 300 روپے کر دیں گے۔ یہ کیا کریں گے آپ لوگ؟ کوئی پوچھنے والا ہے ان سے؟ ہماری حکومت میں یہ بہت بڑا ریلیف ہے کہ اتنے پرائز اپ سے پرائز کو ڈاؤن لے کے آ رہے ہیں۔ بڑا اچھا ریلیف ہے عوام کے لیے، کیونکہ غریب طبقہ ہے اور آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے سیٹل اپ ہو رہی ہیں۔ عوام کے لیے بہت بڑا ریلیف دیا ہے جو ہے میاں شہباز شریف صاحب نے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پچھلی حکومت بہت مہنگائی کر گئی تھی، تو شہباز شریف صاحب نے بہت اچھا سٹیپ اٹھایا ہے۔ لیگ رہنما مریم نواز نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے تاریخی فیصلہ دے کر عمران خان کی جھوٹی سیاست اڑا کر رکھ دی۔ آئین پاکستان کو پاؤں تلے روندنے والوں کے خلاف غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے۔ عمران خان کی وجہ سے ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑے، اب خوشخبریاں آئیں گی، وہ قدر سیدہ میں جلسے سے خطاب کر رہی تھیں۔ سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے نے فتنہ خان کی جھوٹی سیاست کو اڑا کر رکھ دیا۔ میں یہ حکومت پاکستان سے کہتی ہوں کہ یہاں پر بات ختم نہیں کرنی۔ پاکستان کے مقدس آئین کو توڑنے والوں پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، ان کے اوپر غداری کے مقدمے چلنے چاہیے۔ انہوں نے پاکستان کے آئین کو اپنے پاؤں تلے روندا ہے، ان کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ پھر کسی کو پاکستان کے آئین کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہ ہو۔ جو بارودی سرنگیں فتنہ خان پاکستان میں بچھا کر گیا تھا، مسلم لیگ نون نے وہ بارودی سرنگیں ہٹا کر پاکستان کو بچایا ہے۔ فتنہ خان کی وجہ سے جو مشکل فیصلے ہمیں کرنے پڑے، آج میرے عوام کو ریلیف ملنے لگی ہے، میرا دل بہت خوش ہے۔ اب تو 17 جولائی کو پنجاب کے پاس موقع آیا ہے تمہاری 4 سال
بدلہ لینے کا. جو کہتا تھا میں اقتدار سے نکلا تو خطرناک ہو جاؤں گا، اب رو رو کے کہتا ہے ڈائریوں میں نام نوٹ کر رہا ہوں. عمران خان تیاری پکڑ لو، اب باقی کی زندگی اس ڈائریوں میں نام نوٹ کرتے کرتے گزر جائے گی. رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ صدر، سابق وزیر اعظم اور ڈپٹی اسپیکر نے آئین کے ساتھ فراڈ کیا. صدر مملکت استعفیٰ دیں، اس سے بڑا کوئی جرم نہیں. ریفرنس کے لیے کارروائی پر کام شروع کر دیا. الیکشن کمیشن انہیں ڈی سیٹ اور نااہل قرار دے. وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ لانگ مارچ کے دوران شیخ رشید کو گرفتار کرنے کا ارادہ تھا، بہت ڈھونڈا، وہ نہیں ملے. نواز شریف کو سزا زیادتی ہے، واپس آ کر اپیل کریں، امید ہے بری ہو جائیں گے. پریزیڈنٹ، پی ایم، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر نہ صرف انہوں نے آئینی طور پہ اس مقدس امانت کو ایکسرسائز کرنے میں خیانت کی ہے، انہوں نے فراڈ کیا ہے ملک کے آئین کے ساتھ. اس سے بڑا جرم جو ہے کوئی اور نہیں ہے، اور اس کی سزا جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 5 اور 6 میں جو ہے وہ درج ہے. مطالبہ کرتا ہوں کہ ایوان صدر میں بیٹھا شخص جو ہے اس فیصلے کے بعد اسے جو ہے وہ سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے. وفاقی حکومت ہی آرٹیکل 6 کے تحت یا آئین کی وائلیشن کے اوپر ریفرنس جو ہے وہ بھیج سکتی ہے. اس لیے اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. اسپیکر باؤنڈ ہے کہ وہ ان کے خلاف نااہلی کا ریفرنس جو ہے وہ بنا کے الیکشن کمیشن کو بھیجے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ انہیں نہ صرف ان کو ڈی سیٹ کرے بلکہ ان کو نااہل قرار دے. عمران خان صاحب گرفتار ہو نہیں سکتے، میں انہیں گرفتار کرنے کو تیار ہوں. کیبنٹ جو ہے وہ اس کے خلاف وہ مقدمہ درج کرنے کی اجازت ملتی ہے تو بالکل اس کو اس میں گرفتار ہونا چاہیے. شیخ رشید صاحب کو تو لانگ مارچ کے دوران ہی جو ہے وہ ارادہ تھا، اور میں نے ویسے سچی بات اس کو بڑا ڈھونڈا اس کو، لیکن وہ ملا نہیں. نواز شریف صاحب کی سزا جو ہے وہ ایک تو غلط ہے، بے بنیاد ہے، بے گناہ ہے، وہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. سسپینشن جو ہے وہ بحال ہونی چاہیے اور وہ واپس آئیں، واپس آ کے جو ہے وہ اپنے جو اپیلیں ہیں ان کی پیروی کریں. انہیں امید ہے کہ وہ ان اپیلوں سے جو ہے وہ بری ہوں گے. تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں حقائق کو مد نظر نہیں رکھا گیا. سندھ ہاؤس میں لوگوں کی خرید و فروخت ہوتی رہی. جان بولٹن امریکی رجیم چینج سازشوں کو اعتراف کر چکا ہے. آرٹیکل 6 لگنا شروع ہو جائے تو رسے کم پڑ جائیں گے. پاکستان کے عوام کو فیصلوں کا حق دینا ہوگا. وہ لاہور میں میڈیا سے بات کر رہے تھے. جان بولٹن کہہ رہا ہے کل کہ جی اس نے اعتراف کیا ہے کہ امریکہ دنیا میں رجیم چینجز آپریشن کرتا رہا اور ہم نے ایسے کام جو ہیں وہ وہاں پہ کیے ہیں. ہماری سپریم کورٹ کہہ رہی ہے نہیں وہ اس میں نہ جائیں، وہ اس نے دیکھنا نہیں ہے، وہ ہمیں نہیں پتا جی. ہمارے سامنے ایک طرف ہم مٹیریل رکھ رہے ہیں، آپ مٹیریل دیکھنے کو تیار نہیں ہیں، دوسری طرف ججمنٹ آپ دے رہے ہیں کہ جی یہ مٹیریل جو ہے وہ وہاں پہ پلیس نہیں کیا گیا. تو یا آپ مٹیریل دیکھیں اور اس پہ فیصلہ کریں، یا پھر آپ مٹیریل نہ دیکھیں اور پھر آپ پولیٹیکل فیصلہ کریں. یہ زیادہ دیر یہ سلسلہ جاری رہ نہیں سکتا. پاکستان کے عوام کو فیصلوں کا حق دینا ہوگا تو ریسٹرین کا مظاہرہ کریں. آرٹیکل 6 کے کیسز یہاں پہ پاکستان میں بننے شروع ہوں گے، گلے کم پڑ جائیں گے، رسے کم پڑ جائیں گے، گلے بہت زیادہ ہیں. زیارت میں دہشت گردوں کے ہاتھوں اغوا ہونے والے ڈی ایچ اے کوئٹہ کے کرنل لائق مرزا شہید ہو گئے. بازیابی کے آپریشن کے دوران 2 دہشت گرد اپنے انجام کو پہنچ گئے. کرنل لائق شہید کے مغوی کزن کی بازیابی کے لیے آپریشن جاری ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق 12 اور 13 جولائی کی رات دہشت گردوں نے ڈی ایچ اے کوئٹہ کے کرنل لائق بیگ مرزا اور ان کے کزن عمر جاوید کو زیارت کے علاقے وارچوم سے اغوا کیا. اطلاع ملنے پر آرمی کوئک ریئیکشن فورسز کو فوری طور پر روانہ کیا گیا، جنہوں نے دہشت گردوں کا منکی ڈیم کی طرف جانے کا سراغ لگایا. 13 اور 14 جولائی کو دہشت گردوں کا محاصرہ کیا گیا، جس کے دوران کرنل لائق شہید ہو گئے. فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے جبکہ دیگر عمر جاوید کو لے کر فرار ہو گئے. آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز یرغمالی کی بازیابی اور مجرموں کو پکڑنے کے لیے پرعزم ہیں. خراب موسم کے باوجود علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے.
पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने सूबे के 20 हलकों में पुरअमन और शफाफ ज़िमनी इलेक्शन के इनेकाद की पूरी तैयारी कर ली है। बैलेट बॉक्सेस की बाहिफाजत तरसील, ज़िला रिटर्निंग अफसरान के दफातर में पहुँचने और नताइज के ऐलान तक मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। तफसील के लिए लाहौर से रिपोर्ट देखिए। पंजाब के 14 अजला के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। IG पंजाब राव सरदार खान और दीगर आला अफसरान की मुशावरत से अहम फैसले किए गए। इजलास में बताया गया कि 3100 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पंजाब पुलिस के 52,000 से ज़ायद एहलकारों अफसरान फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक पर 100% अमल दरामद करवाया जा रहा है। हवाई फायरिंग, असले की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मुखालिफिन के कैंप्स और बैनर्स उखाड़ने की इजाजत नहीं होगी। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए रिजर्व फोर्स और एंटी राइट्स फोर्स के जवान पूरी तरह अलर्ट होंगे। बैलेट बॉक्सेस की बाहिफाजत तरसील, जिला रिटर्निंग अफसरान के दफातर में पहुंचने और नताइज के ऐलान तक मुकम्मल सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। नताइज के ऐलान के बाद भी हवाई फायरिंग और लड़ाई झगड़े के वाकयात पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात की मॉनिटरिंग के लिए सेंट्रल पुलिस ऑफिस और जिलाई सतह पर कायम कंट्रोल रूम्स में मॉनिटरिंग की जाएगी। पंजाब हुकूमत, पुलिस और इंतजामिया शफाफ ज़िमनी इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल मुआवनत फ्राहम करेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि कराची में 24 जुलाई को बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल है, लेकिन सूबाई इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान कराची आए और यहाँ की सूरत हाल का नोटिस लें। कई बेज़ाब्तगियों के बावजूद जमात इस्लामी मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन के इनेकाद पर यकीन रखती है। वह कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सिंध इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो मौजूद हैं इस्लामाबाद में, उनको चाहिए कि यहाँ कर बैठें। अब 24 तारीख में कितने दिन रह गए और जाकर चेक करें, रैंडम चेकिंग करें और फिर उसके बाद अपने अमले का जायज़ा लें। जिनको प्रिजाइडिंग अफसर बनाया जा रहा है, जिनको रिटर्निंग अफसर लगाया गया है, उन सब का वो खुद जायज़ा लें तो उन्हें पता चल जाएगा। और अगर वो ये काम नहीं करते तो हम समझेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी सिंध इलेक्शन कमिश्नर की तरह यहाँ पर जो सिंध हुकूमत है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इलेक्शन वाले दिन जिस तरह से मनसूबाबंदी की जा रही है कि इस पूरे इलेक्शन को भी बिल्कुल अंदरून सिंध के इलेक्शन की तरह यरगमाल बना लिया जाए, इसका भी सद्देबाब होना चाहिए। हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं, MKM और पीपल्स पार्टी, ये एक दूसरे की फैसिलिटेटर बनी हुई हैं ताकि वही काम दोहराया जाए शहर में जो पहले होता रहा है। ज़ाहिर है कि अब वो वक्त गुजर गया है। हम ये बता देना चाहते हैं कि इस तरह की कोई भी चीज़ काबिल कबूल नहीं है और हम बिल्कुल फेयर एंड फ्री इलेक्शन देखना चाहते हैं, अगरचे कि उसमें धांधली ऑलरेडी जो है वो टेक्निकल तरीके से और इंजीनियरिंग की जा चुकी है। इस सब के बावजूद मैं कहना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद पर यकीन रखती है और हमारा बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इस वक्त भी बहुत सारी जमातें सुप्रीम कोर्ट में गई हुई हैं कि किसी तरह बल्दियाती इंतखाब से फ़रार इख्तियार करें। मैं समझता हूँ कि ये तरीक़ा सही नहीं है, वो आवाम को फेस करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शीरी मज़ारी का कहना है कि झूठे केसेस बनाने से वाज़ेह हो गया इम्पोर्टेड हुकूमत का एजेंडा PTI को खौफज़दा करना है। ना तो लीडरशिप खौफज़दा है, ना ही लोग। इस हुकूमत के आने का वाहिद मकसद अपने करप्शन केसेस ख़त्म कराना था। वाज़ेह हो गया है कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसका एजेंडा जो है, और इम्पोर्टेड हुकूमत के जो हैंडलर्स हैं इनका एजेंडा है कि PTI की लीडरशिप को आप टेरराइज करो, आप खौफज़दा करो और उससे लोग खौफज़दा होंगे। ना PTI की लीडरशिप खौफज़दा है, ना लोग खौफज़दा हैं। वो खौफ की जंजीरें टूट गई हैं क्योंकि कौम को पता है कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें अमेरिका की ग़ुलामी नहीं चाहिए। और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इनका मकसद आने का सिर्फ था कि अपने करप्शन के केसेस ख़त्म कर दें और बाकी अमेरिका के सामने लेट जाएं। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने एंटी करप्शन में तलबी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। शेख रशीद ने अपने वकील की वसातत से दरख्वास्त दायर की है। शेख रशीद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि एंटी करप्शन ने तलबी के नोटिस बदनीयती पर जारी किए हैं, कभी भी किसी भी कानून की पामाली नहीं की। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। एंटी करप्शन ने हक़ाइक़ के बरक्स नोटिस जारी किए। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि लाहौर हाई कोर्ट तलबी के नोटिस को कलअदब करार दे और एंटी करप्शन को हरासा करने से रोकने का हुक्म भी जारी करे। आगे बढ़ते हैं। अभी खबर यह है, सिंध भर में इंसानी स्मगलिंग के वाक़यात में होशरुबा इजाफा हुआ है। सिर्फ 6 माह में इंसानी स्मगलिंग के 200 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आज सिंध ने तमाम अजला में 42 डेस्क कायम कर दिए हैं। शुएब बुखारी की रिपोर्ट देखिए।
मुल्क भर की तरह सिंध में भी इंसानी स्मगलिंग का मकरू धंधा जारी। पंजाब के बाद सिंध में भी इंसानी स्मगलिंग के वाकयात में इजाफा होने लगा। सूबे में 6 माह के दौरान 200 इंसानी स्मगलिंग के केसेस रिपोर्ट। सिर्फ एक को सजा हुई। इंसानी स्मगलिंग में जबरी मुशक्कत, जिनसी इस्तेहसाली, जिनसी तिजारत, जबरी शादी, इंसानी आज़ा की स्मगलिंग, गुलामी बराए कर्ज अदायगी और जबरी गदागरी शामिल हैं। SSP ईस्ट के मुताबिक सिंध के तमाम अजला में इंसानी स्मगलिंग की 42 डेस्क कायम की गई हैं। हेल्पलाइन 1715 से पुलिस की मदद भी हासिल की जा सकती है। अभी तक सिंध के अंदर 2022 के अंदर करीब 220 के करीब FIRs कट चुकी हैं जनवरी टिल जून, और इसमें बहुत सारे जो दोनों एस्पेक्ट्स हैं, बॉन्डेड लेबर भी है और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन वाले, उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज के हमारे विक्टिम जो है हमने उनको आइडेंटिफाई किया। जो है वो एक नासूर है माशरे के लिए, जिसमें जिनसी इस्तेसाल होता है या जबरी मुशक्कत का आंसर होता है, और इसकी वजह से हमारी इंटरनेशनली भी हमारे मुल्क के लिए बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो रही हैं। जैसे आपको पता है कि स्टेट डिपार्टमेंट इसको रिव्यू करता है, और अभी हम Tier 2 में, और अगर हमारी मज़ीद तनाज़ली हुई तो हम Tier 3 में जाएंगे, जिसके ऊपर हमारे पर सैंक्शन लगने की और डिफरेंट हमारे पर लगने की चांसेस हैं। होता है कानून 2018 का बना हुआ, लेकिन 2021 से लेके अब तक हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इस पे काम हुआ है। एक तो मैसिव अवेयरनेस की कैंपेन्स हुई हैं। इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड डेस्क है, एक ऑफिसर SP रैंक के हैं जो कि CPO में बैठते हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर DSP लेवल के ऑफिसर हैं जो फोकल पर्सन है। 2018 में ट्रैफिकिंग इन पर्सन के नाम से कानून बनाया गया, जिसमें अमल दरामद जरूरी है। अक्सर नौजवान शॉर्टकट के चक्कर में स्मगल हो जाते हैं। बच्चों को भी एक शहर से दूसरे शहर ले जाकर भीख मंगवाई जाती है। 2018 का जो कानून बना था, जो ट्रैफिकिंग इन पर्सनस को काउंटर करने के लिए जो है वो कानून बनाया गया था, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इंटरनल ट्रैफिकिंग है, जो विद इन पाकिस्तान इंसानों की सौदागरी हो रही है, इंसानों की खरीदो फरोख्त होती है, बॉन्डेड लेबर करवाई जाती है, उनसे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करवाई जाती है, उसको रोकने के हवाले से पुलिस को जो है वो मैंडेट दिया गया कि पुलिस जो है उसको रोकेगी, और उसके ऊपर उसके हवाले से जो है वो अपनी कोई स्ट्रेटजी बना के ऐसे ट्रैफिकर्स जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। पुलिस का काम है अरेस्ट करना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि विक्टिम आइडेंटिफिकेशन, जो विक्टिम उसमें है उसको एक्यूज़ नहीं बनाना, उसको विक्टिम बनाना है, और उस विक्टिम को फिर रेफ़र करना है रेलेवेंट डिपार्टमेंट के लिए, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट या चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर अगर वो बच्चा है, वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर अगर वो खातून है, ताकि उसकी रिहेबिलिटेशन की जा सके। कराची समेत दीगर अजला में बढ़ते इंसानी सौदागरी के वाकयात में कमी लाने के लिए तमाम इदारों का सर जोड़कर बैठना और ऐसे गिरोहों का किला कमा करना वक्त की अहम जरूरत है। इंसानी स्मगलिंग के वाकयात तशवीशनाक हद तक बढ़ रहे हैं। ऐसे में कानून नाफिज करने वाले इदारों को ऐसे जराइम के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करने की जरूरत है। कैमरामैन इमरान खालिद के साथ शुएब बुखारी, दुनिया न्यूज़, कराची। फैसलाबाद के शेखुपुर रोड से मुल्हिका मोहल्ला गार्डन गंदे तालाबों में तब्दील हो गया। गंदगी और ताफुन की वजह से अहले इलाका बीमारियों का भी शिकार बन रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं अब्दुल बासित अपनी रिपोर्ट में। फैसलाबाद के शेखुपुरा रोड पर वाक़या मोहल्ला गार्डन का सीवरेज सिस्टम बदहाली का शिकार बन गया, जिससे गलियों मोहल्लों में लगे गंदे तालाबों की वजह से शहरियों का घरों से बाहर निकलना भी महाल हो गया है। गंदे पानी में पैदा होने वाली मक्खियों और मच्छरों से बहुत सी जल्दी और दीगर बीमारियां भी जन्म लेने लगी हैं। शहरी कहते हैं वासा हुकाम और मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली को मुतअद्दिद बार शिकायत का अंदराज करवाया गया, लेकिन नतीजा बिल्कुल सिफर रहा। 5-6 साल का अरसा हो गया यही सूरत हाल यहाँ पे, औरतों का और नमाजियों का मस्जिद में जाना, सब जनाब बहुत परेशानी है। ये ऐसे ही काम चल रहा है, कोई इसका काम नहीं कर रहा है। MP MN जिसके तरफ भी जाएं वो कहते हैं जी हमारे तरफ नहीं है, वासा वाले हमारी बात नहीं मांगते। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਵਾਂ, ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਵਾ बेचारे पे। MD वासा कहते हैं मोहल्ला गार्डन से मुतल्लिक शिकायत मौसूल हो चुकी है। जल्द सेवरेज सिस्टम को बेहतर बनाते हुए शहरियों को दरपेश मसाइल का खात्मा कर दिया जाएगा। हमें जहाँ से भी कंप्लेंट आएगी हमने उस कंप्लेंट को फ़ौरन रिजॉल्व करना है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि हम कहें कि पूरे लाहौर पूरे फैसलाबाद में कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, ऐसा नहीं है। ब्लॉकेज रोज़ाना होती हैं, उनको रोज़ाना रिमूव किया जाता है और अगले दिन फिर और होती हैं। गुज़िश्ता कई सालों से गलियों मोहल्लों और शहरियों के घरों के अंदर जमा हुए गंदे तालाबों से शहरियों के कीमती घरों की बुनियादें मुतासिर होने का भी खदशा है। इसके बावजूद हुकाम की खामोशी बाइसे फ़िक्र है। फैसलाबाद के मोहल्ला गार्डन में गुज़िश्ता कई सालों से लगे गंदे पानी के तालाब इलाका मकीनों के लिए वबाल जान बने हुए हैं।
मुतल्लिका हुकाम को मुतअद्दिद बार शिकायत का अंदराज तो करवाया गया, लेकिन कोई दाद रसी ना हुई। कैमरामैन मोहम्मद तैयब के साथ अब्दुल बासित, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। आगे बढ़ते हैं। मानसून की ताकतवर स्पेल के बायस लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद बारिशों का ये सिलसिला आज और कल भी वक्फे से जारी रहेगा। तेज़ बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा मौजूद है। मानसून का ताकतवर स्पेल इस वक्त पंजाब के बेशतर अजला में शदीद बारिशें बरसा रहा है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में होने वाली तेज़ बारिश के बायस मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गए। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला कम अज़ कम आइंदा 2 रोज़ तक वक्फे से जारी रहेगा, जिस दौरान जुमे को भी तेज़ बारिशें मुतवक्को हैं। पंजाब के दीगर अजला की तरह लाहौर में भी सुबह से तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी है। मौसम की इस करवट से गर्मी तो रफू चक्कर हो गई, लेकिन इसके साथ साथ सर्कुलर रोड, कश्मीर रोड और लक्ष्मी चौक समेत शहर के मुतअद्दिद नशीबी इलाकों में पानी जमा हो जाने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी रहा। नशीबी इलाकों के साथ साथ चिल्ड्रन हॉस्पिटल और जिना हॉस्पिटल भी नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। हॉस्पिटल के दाखिली रास्ते और अहाते में बारिश का पानी जमा रहा। बारिश के बायस 150 से जायद फीडर्स ट्रिप होने से अक्सर इलाकों में बिजली भी गायब रही। इस सूरत हाल के तनाजुर में अर्बन फ्लडिंग के खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं। उधर टांक में सैलाब ज़दगान की इमदाद और बहाली के लिए पाक फ़ौज का रिलीफ ऑपरेशन जारी है। टांक में पाक फ़ौज की जानिब से सैलाब ज़दगान में 3 ट्रक इमदादी सामान तकसीम कर दिया गया, जिसमें अशियाई खुरानोश, टेंट्स और खुराक शामिल है। टांक में सैलाबी रैली से 2 अफराद जाँ बहक, जबकि मुतादिद छतें और दीवारें गिरने से ज़ख्मी भी हुए हैं। जनूबी कोरिया में अफराते ज़र की सतह 24 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचने से आवाम के लिए मसाइल में मज़ीद इजाफा हो गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक गंदम और दीगर अजनास की कीमतें बढ़ने के बाद 1200 से ज़ायद बेकरीज बंद हो गई हैं। रवा माह आटे के 20 किलो के थैले की कीमत $22.3 हो गई, जो 4720 पाकिस्तानी रुपये बनती है। आटे, चीनी और मक्खन समेत दीगर अशिया की कीमतों में कई गुना इजाफे के बाद आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। उधर इटली में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इत्तेहादी जमात ने हुकूमत के अलग होने पर वज़ीर आज़म मारियो द्रागी ने मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया है। मारियो द्रागी ने अपना इस्तीफ़ा सदर को भेज दिया, ताहम सदर ने उन्हें पार्लियामेंट से खिताब करने और सियासी सूरत हाल का जायज़ा लेने का मशवरा देते हुए इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया। मारियो द्रागी की हुकूमत में शामिल अहम इत्तेहादी जमात ने अदम एतमाद के वोट में वज़ीर आज़म की हिमायत न करने का फैसला किया। इसके बावजूद मारियो द्रागी ने एतमाद का वोट जीत लिया, ताहम फ्रेश मैंडेट लेने के लिए मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। बरतानवी वज़ारत उज़्मा की दौड़ में भारतीय नजात साबिक वज़ीर ख़ज़ाना ऋषि सुनाक बदस्तूर सबसे आगे हैं। टोरी पार्टी की क़यादत के लिए इंतख़ाबात के दूसरे मरहले में 101 MPs ने ऋषि सुनाक के हक़ में फ़ैसला सुना दिया। यानी मॉडर्न 83 अरकान की हिमायत के साथ दूसरे नंबर पर हैं, जबकि नेस्ट्रिस को 64, कैमी बेनोच को 49 और टॉम नॉगेट को 32 वोट मिले, जबकि स्विला ब्रेवरमन को 27 अरकान की हिमायत हासिल है। पार्टी कायद का हतमी ऐलान 5 सितंबर को किया जाएगा, जो वज़ारत उज़्मा का हल्फ भी उठाएगा।